بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان کسوریا۔ اور آج پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، شاہزیب خان کسوریا، اور قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ 7 لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تمنیل دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے، کہ قیامت سے پہلے سرخ آندھی نے آنا ہے، تو کیا یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں جانیں گے، مولانا صاحب کو سنیں گے، اپنا ایمان تازہ کریں گے اور اس پر ریئیکشن دیں گے۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کروائیں گے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل شاہزیب خان کسوریا کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از عبد الحبیب اتاری۔ میرا نام عبد الحبیب اتاری ہے اور ہمارے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویب سیریز ہے قیامت کی نشانیاں۔ ناظرین، ہم سب کو یقین بھی ہے اور معلوم بھی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، لیکن اس کا دن ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ قیامت اچانک سڈنلی آئے گی۔ البتہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی احادیث کے ذریعے قیامت کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب غنیمت کو لوگ اپنی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان بنا لیں گے، اور علم کو دین کے سوا کسی دوسرے مقصد سے پڑھیں گے، اور آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، اور قبیلے کا سردار ان میں فاسق آدمی ہوگا، اور قوم کا رہنما ان میں سب سے زیادہ کم ظرف شخص ہوگا، اور آدمی کی تعظیم اس کے شر کے خوف سے کی جائے گی، اور گانے والیوں اور باجوں کا ہر طرف چرچا ہوگا۔ قسم قسم کی شرابوں کو لوگ پینے لگیں گے۔ جب یہ سب ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، یعنی ریڈ کلر کی اسٹرانگ ونڈز، سرخ آندھی قیامت سے پہلے آئے گی۔ اور یہ باتیں ناظرین جو ہم سن رہے ہیں، ان میں بہت ساری باتیں تو ایسا لگتا ہے کہ روز ہی ہمارے درمیان ہوتی ہیں۔ ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سرخ آندھی ہی ہے۔ یہ سرخ آندھی کیا ہے، یہ کب آئے گی، اور کیا یہ آ چکی ہے؟ ان تمام باتوں کو ریویل کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری امت سے پہلے بھی قوم عاد پر ایک خطرناک، بہت تیز اور شدید آندھی آئی تھی۔ اس کا واقعہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ قوم مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان، جو آج کل عمان ہے، اور حضرہ موت، یہ یمن میں ایک سٹی ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے۔ یہ قوم وہاں رہتی تھی۔ یہ لوگ باطل خدا کی عبادت کرتے تھے اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے، بیڈ ڈیڈز کے اندر، ایول ڈیڈز کے اندر یہ انوالو تھے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈینائی کر دیا، جھٹلا دیا، اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کی عذاب سے، رب عز و جل کی پنشمنٹ سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت بے باکی اور گستاخی کے ساتھ بڑے پراؤڈ میں اپنے نبی کو کیا جواب دیا؟ آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، یہ کیسی قوم تھی کہ گویا حضرت اپنے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو وہ پنشمنٹ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اتنے بے باک تھے۔ پھر کیا ہوا؟ عذاب الہی کی ہائی لائٹس، جھلکیاں شروع ہو گئی۔ پہلے تو 3 سال تک 3 years نو رین، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا۔ لوگ بوند بوند پانی کو ترسنے لگے اور دانے دانے کو ترسنے لگے۔
उस जमाने का ये दस्तूर था कि जब कोई क्लैमिटी, जब कोई मुसीबत आती तो ये लोग मक्का मुअज्जमा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगते थे। अजब कौम थी, काबे को तो मानती थी मगर अल्लाह के नबी को नहीं मानती थी। बहरहाल वो काबे में जाते, दुआएं करते, वो क्लैमिटीज, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाया करती थी। चुनांचे उनमें से कुछ लोग जमा होकर मक्का मुकर्रमा गए और उनमें एक शख्स था मरसद बिन साद। वो मोमिन था मगर अपने ईमान को कौम से उसने छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था। जब उन लोगों ने काबा मुअज्जमा में दुआएं मांगनी शुरू की तो मरसद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया। उसने तड़प कर कहा कि ए मेरी कौम, तुम लाख दुआएं कर लो, जितनी मांगनी है मांग लो, मगर खुदा की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हजरत मरसद बिन साद ने जब अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने उनको मार पीट कर अपने आप से अलग कर दिया और फिर दुआएं मांगने लगे। कमाल की कौम है नाजरीन, अल्लाह के नबी की गुस्ताखी हो रही है, उनकी बात नहीं मान रही और अल्लाह से दुआएं कर रही है। क्या अल्लाह वालों को नाराज करके रब से कुछ मांगा जा सकता है? ये बड़ी अहम बात है जो मैंने और आपने सीखनी है। बहरहाल अब उस वक्त अल्लाह पाक ने 3 बदलियां यानी 3 बड़े क्लाउड्स भेजे। एक व्हाइट कलर का था, एक रेड सुर्ख रंग का और एक ब्लैक रंग का था। और उसके साथ ही आसमान से एक आवाज आई कि ए कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन 3 बदलियों में से, इन 3 क्लाउड्स में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, एक पसंद कर लो। तो लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया। आज हमारे अभी जब ब्लैक क्लाउड आते हैं तो हम समझते हैं ना जबरदस्त रेन होनी है, तो उस कौम ने भी देखा कि 3 कलर्स हैं तो ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लिया और इस ख्याल में मगन थे कि अब काली बदली से तो खूब पानी बरसेगा, खूब रेन होगी और हमारा जो है वो सारे खेत दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। और जैसे उन्होंने सेलेक्ट किया तो वो जो ब्लैक कलर का क्लाउड था वो कौम आद की आबादियों की तरफ, उनकी सिटी की तरफ चलने लगा। कौम आद भी उस ब्लैक क्लाउड के पीछे पीछे बड़ी खुश हैप्पीनेस के साथ जाने लगे। एवरीबडी रेडी कि अब जबरदस्त बारिश होनी है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, देख लो अजाब इलाही तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर उस वक्त भी उन बदबख्तों ने अपने नबी की बात को डिनाई किया और कहा कहां का अजाब और कैसा अजाब, ये तो ब्लैक कलर का क्लाउड है और ये बादल तो हमें बारिश देने आ रहा है। अल्लाह अकबर। नाजरीन, अब अजाब स्टार्ट होता है, अब पनिशमेंट स्टार्ट होती है। जब ये क्लाउड कौम आद की आबादी के पास पहुंच गया तो फिर एकदम इस बादल से एक आंधी आई, एक बहुत शदीद स्ट्रॉन्ग विंड जो इतनी तेज थी कि कैमल्स को, उनके ऊंटों को उनके सवार के समेत उड़ा कर ले गई, कहीं से कहीं जाकर फेंक दिया। इतनी जोरदार हो गई, इतनी स्पीड उसकी बढ़ गई कि दरख्त जो थे, बड़े बड़े ट्रीज जड़ से उखड़ गए। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने पत्थरों से बनाए हुए घरों में वो दाखिल हो गए। स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि स्टोन्स के बने हुए थे, दरवाजों को बंद कर दिया और अब ये एक्सपेक्ट करने लगे कि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड जरूर है मगर हमारे स्टोन्स के घर हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेज हैं, इसका क्या होगा। मगर ये नॉर्मल विंड नहीं थी, ये आंधी अल्लाह के अजाब की थी। नाजरीन, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड थी कि दरवाजे उखाड़ कर उस आंधी ने फेंक दिए और फिर इतनी जबरदस्त विंड आई कि ईंट से ईंट उनके मकानों की गोया तबाह बर्बाद हो गई। और ये कौम 7 दिन और 7 रात मुसलसल आंधी चलती रही और कौम आद के तमाम लोग मर गए। जब आंधी खत्म हुई तो इस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह फैली हुई थी कि जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर जमीन पर पड़े हों। फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक बड़ा लश्कर, एक बड़ा गौल आया जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन जो आप पर और अल्लाह पर ईमान लाए थे उनको साथ लेकर मक्का मुकर्रमा चले गए और आखिरी जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। अब मैं हदीस पाक के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं, जो उलमा ने डिसाइड किया कि क्या ये निशानी हो चुकी है या होनी है, इस पर बात करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे दावत इस्लामी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इन वीडियोस को अच्छी नीयतों के साथ शेयर कीजिए और सवाब के हकदार बनिए। नाजरीन, अब जो हमने शुरू में आपको हदीस सुनाई थी उसमें जो बातें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बातें जब हो जाएं तो सुर्ख आंधी से डरो, तो ऐसी बातें तो हो रही हैं हमारे माशरे में। आज वो तमाम गंदी की हरकतें, वो तमाम बुरे अमाल हमें हमारे आसपास नजर ही तो आ रहे हैं।
बस हमें अल्लाह पाक के अजाब से डरना चाहिए। कौम आद को देखिए ना, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़े टॉल थे, कदावर कौम थी। इन लोगों की माली हालत भी बड़ी जबरदस्त थी, बड़े वेल ऑफ थे, लश ग्रीन फील्ड्स थी और हरे भरे बागात उनके पास थे। बड़े बड़े माउंटेन्स को तराश खराश कर कर्व करके उन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के, जी हाँ, उन्होंने समर और विंटर के अलग अलग हाउसेस बनाए हुए थे। उन लोगों को अपनी कसरत पर, अपनी ताकत पर बड़ा कॉन्फिडेंस था, बड़ा नाज था, बड़ा प्राउड था। मगर इविल डीड्स एंड सिंस की नहुसत ने उन लोगों को कहरे इलाही में इस तरह गिरफ्तार किया कि आंधी के खतरनाक झोंकों और झटकों ने उनकी पूरी की पूरी आबादी को हिला कर रख दिया, तोड़ फोड़ कर रख दिया और उस पूरी कौम के वजूद को सफाए हस्ती से इस तरह मिटा दिया गया कि उनका नामो निशान भी बाकी ना रहा। फिर भला हम जैसे कमजोर लोगों का क्या बनेगा कि अज़ाब इलाही को क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए जिन लोगों को अपनी और अपनी नस्लों की सेफ्टी और सर्वाइवल अजीज है, उन्हें लाजिम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल की नाफरमानियों और बदआमालियों से हमेशा बचते रहें। अपनी कोशिश और ताकत के मुताबिक गुड एंड पायस डीड्स, अच्छे अमाल करते रहें, वरना अल्लाह पाक का अजाब बरहक है। अगर इस उम्मत की बात करें तब भी पहले कई दफा बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स, आंधियां आ चुकी हैं। जी हाँ नाजरीन, कई लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। हमारी सीरीज की एक सबसे खास बात यह है कि हम हर निशानी के बारे में आपको ये भी बताते हैं कि ये निशानी जाहिर हो चुकी है या होगी। ये भी हम आपको जरूर बताएंगे कि ये सुर्ख आंधी वाली कयामत की निशानी अभी जाहिर हो चुकी है या नहीं। लेकिन इससे पहले आपको हमारी उम्मत में, जी हाँ, इसी उम्मत में पेश आने वाले आंधी के कुछ वाकयात सुनाते हैं। अब्बासी दौर था, 232 सने हिजरी में कूफा और बसरा में एक जहरीली आंधी चली जो हमदान और मूसल तक गई। सारी खेतियां जलकर राख हो गई थी, कितने ही लोग मारे गए। ये आंधी 50 दिन तक चलती रही थी, बाजार वगैरह सब बंद रहे, जिसकी वजह से लोग माशी तौर पर बहुत परेशान और कमजोर हो गए। फिर 288 हिजरी में भी बसरा में एक आंधी आई जो पहले सुर्ख थी, फिर सब्ज और फिर काली हो गई। अल्लाह अकबर। फिर खलीफा मुस्तजहर बिल्लाह के दौर खिलाफत में एक ऐसी काली ब्लैक सियाह आंधी आई थी कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। ये खतरनाक सूरत हाल देखकर लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि कयामत आ गई है। इसी तरह 524 सने हिजरी में शहर मूसल में एक बादल आया जिससे आग, जी हाँ, फायर, आग बरस रही थी। जहां जहां आग बरसी वो जगह जलकर राख हो गई। बगदाद में उड़ने वाले बिच्छू बरसे जिनसे हजारों लोग तबाह बर्बाद हो गए। इसके बाद 596 हिजरी में मक्का मुकर्रमा में काली आंधी आई थी जिसकी वजह से हर तरफ सुर्ख रेत फैल गई। ये इतनी तेज थी कि इसकी वजह से काबातुल्लाह के रुकने यमानी का एक टुकड़ा टूट गया था। इसके अलावा भी बुक्स में बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं जो अल्लाह पाक के अजाब की, उसकी अजाब की झलक की खबर देते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर हमने इन बदआमालियों से रुजू ना किया तो क्या खबर कि न जाने कब हम पर भी ये अजाब उतर आए। लिहाजा इससे पहले हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल पैरा हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अब ये बताकर आपसे इजाजत चाहेंगे कि ये सुर्ख आंधी वाली निशानी जाहिर हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको कुछ वाकयात भी सुनाए, इन सब से भी ये बात साबित होती है और यही बात हमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी बताते हैं कि कयामत की ये निशानी जाहिर हो चुकी है। मगर जैसे जैसे कयामत, डे ऑफ जजमेंट नियर होता जाएगा, कयामत करीब होती जाएगी, मजीद निशानियां भी जाहिर होती रहेंगी। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मौलाना साहब ने बहुत ज़बरदस्त बयान इरशाद फरमाया और हमें बताया कि सुर्ख आंधियाँ के बारे में कि कितनी बार आ चुकी है और क्या क्या होना है, सब कुछ बता दिया है और हमारा दिल ईमान से भर गया है। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होती है। इसके बाद एक नई सी वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए एपिसोड 8 के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश करेंगे कि मेरी इस चैनल शाहज़ेब खान कसूरिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें। तब तक के लिए वस्सलाम।